Everyone, today we're going to start with the percentage. We're going to start from very basic concepts and we'll cover up to advanced level. Today we're going to start with the percentage part 1. So let's first understand what is the definition of percentage. So percent, if you see percent, cent itself means 100. Cent means 100. Cent का मतलब 100 होता है. So percent means per 100. Per 100. It means like you are reducing or increasing a quantity up to a level of 100. Like suppose generally what you see, your maximum marks of a subject is 100 and you get some marks, suppose 80. So that is called the 80 percentage. But sometimes your exam is of 50 marks and you get suppose 40 marks, that is also of 80%. Sometimes your paper is of 200 marks and you get 160 marks, that is also 80%. So this what it means, like you are increasing this quantity up to 100 level, you are reducing this quantity to a level of 100. So any terms किसी भी चीज को 100 के proportion में represent करना, that is a percentage. Simple. This is the definition of percentage. And we represent, like suppose you need to write 70%, so you will write like this. This is 70 percentage. Fine. Simple. So now let's see, like I hope definition is clear. Now let's get to the thing, like how to calculate a percentage. Suppose you have to find x percent of y. Suppose you have to find x percent of y. So if you see the formula, so simple formula is x upon 100 into y. Now let's take a very simple example. Suppose you need to find 20% of, let's say 300. So what you will do? 20 upon 100 into 300. So this is 60. If you do the calculation, you get the 60. So this is the calculation. This is finding x percent of any given number. This is the way. Now just let me tell you a few simple things. Suppose suppose you have a given number, like say 353, and you want to calculate 10% of this number. So I'm just telling you a few shortcuts, few methods that you can use. So 10% of any number will be, just put this 35.3 will be the 10% of 353. Is it clear? From right hand side, you will just put a decimal and that will become the 10% of any number. I hope many of you know this thing. Now, so 10% is clear. Suppose you need to calculate the 5% of this number. So what you will do? You will just do the half of this number. You'll just do the half of this number. I hope I have done the calculation right. Just check you. This is fine. So 10% and half of that will be 5%. Suppose you need to find the like 50% of this thing. So what you will do? You will directly do half of it. Like 353 divided by 2 will give you the 50% of a given number. Suppose you need to find the 40% of a given number. So just multiply it by 4. ठीक है, 10% निकाल के अब देखो काम आसान हो गया. 10% निकालना आसान. आई होप सबको समझ में आ गया. क्या करना है हमें? राइट हैंड साइड से आके जो लास्ट डिजिट है उसके बाद लाइक वंस प्लेस की डिजिट के बाद जस्ट डेसिमल रख देना है. ठीक है, सिंपल. अगर 5% निकालना है तो 10% निकाल के हाफ कर दियो. अब 10 के मल्टीपल में कोई भी निकालना हो, 10 के मल्टीपल में 40% निकालना है तो 10% निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दियो. 50% निकालना है तो डायरेक्ट हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है. आई विल टेल यू ऑल्सो दीज नंबर्स लाइक कैसे यूज करने हैं, बट अभी के लिए सिंपल सी चीज़ है. 10% निकालना बहुत आसान होता है. 20%, 40%, 30% जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है. जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. सपोज यू नीड टू फाइंड द 25%, सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई नंबर बाय 1/4. सिंपल. आगे हम देखेंगे लाइक बहुत सारे नंबर्स विल सी लाइक कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर 10% और उसके मल्टीपल. ठीक है, 10% कैसे निकालोगे, 5% कैसे निकालोगे, 20%, 30 और इसके सारे मल्टीपल्स. सिंपल. Suppose you need to find like 430. You need to find the 10% of this number. So 10% of this will be 43. 20% of this number will be 10% निकाल लिया, इसका ट्वाइस कर दिया, that is 86. Right? 30% of this number will be 10% निकाल लिया और थ्राइस कर दिया. This is fine. I hope everyone understand this thing, this basic thing. I expect many of you know this thing. 3, 4, 5, 4. Suppose you need to find the 5% of this number. So instead of doing like this 5/100 into, so this way it will become little complex. You need to do a calculations. But here what we can do easily,
what we can do, 5% निकालना है, so we will find the 10% and we will do the half of that. So we will find the 10% and half of that will be, that is 17.7. This we will find the calculator. So I hope you understood how to find the x percentage of any given number, and then you have also learned 10% फिर multiples of 10%. Okay. So this is a question, very simple question. If 30% of a number is 120, find the 50% of the same number. So I'm like, as I have, if you have watched the video, there like how to prepare for quant. So I tell you one thing, that look different perspective of a given one concept है, अगर एक formula है तो उसके different perspectives, different applications देखने की कोशिश करो. That is the important part. So I'm gonna tell you one. देखो, this is a simple thing, है ना? This is a very simple question. Everyone will accept to this point. सब लोग accept करोगे कि बहुत ही simple question है. Still I'm gonna tell you like two things here. So don't think I am trying to make thing complex here of a very simple thing. It's not. I'm just trying to give you a different perspective. ठीक है. अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं. एक तो तरीका देखो सिंपल है, अभी जो हमने किया, 30% ऑफ समथिंग इज गिवन. सो लेट्स टेक दैट समथिंग इज x. 30% ऑफ दिस समथिंग इज x इज 120, है ना. दिस 30% ऑफ x इज दिस थिंग. सो दिस समथिंग x इज 400. जो x तुम्हारा है वो 400 है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द 50%. 50% के लिए यू नो वी जस्ट नीड टू डू हाफ. सो दैट इज 200. सो 200 हमारा आंसर होगा. दिस इज वन थिंग. अब देखो दूसरी चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ. दिस ऑल्सो आई होप एवरीवन नोज, वेरी सिंपल. लेट्स सी द यूनिटरी मेथड. सो यूनिटरी मेथड, 30% ऑफ अ नंबर इज 120. सो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 40 हो जाएगा. 1% है ना. 1% 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा. 1% 4 हो जाएगा. 1% 4 हो जाएगा. यूनिटरी मेथड जैसे यूज करूं, अगर 30% 120 है तो 1% 4 हो जाएगा, एंड 50% कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. सिंपल यूनिटरी मेथड. सो दिस इज ऑल्सो सेम थिंग. दिस क्वेश्चन, Ram's salary is 90% of Shyam's salary. Again, this is a basic question, but sometimes it create a confusion. So let's just clear out this thing. Let me just explain this. Then we'll discuss this question. Suppose A is 10% of B. A is 10% of B. So we can represent this like A is how much percent of B, that is given 10%. This is the one representation. This way you can represent. Other way you can represent A is 10% of B, right? And this thing, it's called multiplying factor, and this will be like doing in the detail in the next part. So this is the important form. Using this form we'll be able to solve all the question in the arithmetic, like related to profit loss, SICI, time, speed, distance, and lot of question will be using this form. So this form is very important. You must be clear with this thing. Okay, this is A is 10% of B. So A is X percent of B. Suppose you need to write, so you write like this: A is X percent of B, right? And this is also simple thing. So remember these two representation. So let's now do this question. So Ram's salary is 90% of Shyam's salary. So let's see first representations. Let's say Ram's salary is R, Shyam's salary is S. So Ram's salary is 90%. ये percentage निकल आएगा 90%. This is the equation. And what you need? You need Shyam's salary in the form of Ram's salary in comparison to the Ram's salary. You need this thing. So how you will calculate? Just rearrange this thing. So if you rearrange this, so this will become SR and multiply with the 90 equal to 100. So SR 100 by 90, and we need this thing. So multiply with the 100. Multiply with the 100. So this will give you the required percentage. This is the required thing. So this will be I think 111.1 something. This is the percentage. So Shyam's salary is 111.11 percentage of Ram's salary. Fine. So this is the way, simple way. Other way, if you represent like this, Ram's salary is 90% of Shyam's salary. If you represent like this, then Shyam's salary, just rearrange.
Sam's salary is 100 upon 90, so this percent, and like this is your this thing, you need to find the percentage. So यहाँ पर देखो ये परसेंटेज लिखा है ना, ये परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 90% यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द 100, यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द 100, देन यू गेट द परसेंट 90%, है ना, बिकॉज 100 हमारी तरफ से। सो सेम थिंग हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 100 टू फाइंड द परसेंटेज, कि लाइक श्याम की सैलरी राम की सैलरी की कितने परसेंटेज है वो निकालने के लिए इस टर्म से हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज दिस इज अगेन सेम वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 9, सो दैट इज 111.11%, सेम आंसर। आई होप बोथ द अप्रोचेस आर क्लियर, both the things are clear, both are same thing, just little difference, and this will be very very helpful in when we'll be discussing this, gonna be very important part, okay? Okay, so in a poll a total of this much vote were polled, of which 10% were invalid, so like एक vote total इतने थे तुम्हारे और इसमें 10% तुम्हारे invalid थे, तो बचे कितने, 90% बचे, है ना, 90%, तो 90% votes are left। इसमें के 10% 90% वैलिड वोट, 10% इनवैलिड जो काउंट नहीं किए जाएंगे। नाउ अ कैंडिडेट रिसीव्ड 60%, सो कैंडिडेट ने 60% इसके वोट रिसीव किए, 90% ऑफ दिस इसके 60%, तो इसके 60% कितना होगा, अब देखो 90 है ना, 90 का 10% 9 होगा और 60% 54 हो जाएगा, सो 54%, मतलब इस वाली वैल्यू का 54%, तो कैंडिडेट को 50% वोट मिले। Find the number of votes polled by candidate, तो इसको करेक्शन कर लो, पोल्ड की जगह रिसीव्ड होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट, सो दैट विल बी द 54% ऑफ दिस थिंग। सो 54% ऑफ दिस कैसे कैलकुलेट करोगे, 54 अपॉन 100 इंटू 1,20,000, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये 54 12 4 जा 48 66 4 8 00, दिस इज योर आंसर, राइट? ओके, सो नाउ आई होप यू कैन कैलकुलेट, लाइक परसेंटेज तुम्हें निकालना आ गया, रिप्रेजेंट करना फॉर्म में आ गया कि लाइक x इज 10% ऑफ y, ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देयर आर 2 वेज, है ना। देन तुम्हें 10% निकालना आ गया, 5%, 20%, 30%, 40%, ये सिंपल सी चीजें तुम समझ गए हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये जो टेबल मैंने बना रखी है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टेबल, मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड कीप रिवाइजिंग, और अपने नोटबुक में टेबल बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, ठीक है। सो जैसे मैंने तुम्हें थोड़ा सा चीज बताया था, सपोज यू नीड टू फाइंड द 50% ऑफ एनीथिंग, सपोज लाइक देयर इज अ नंबर, let's say 200, you need to find the 50% of this, so 50% of this will be 50 upon 100 into this thing, but I have told you you can directly just do half of this, half of this will be 50%, 1/4 of this will be 25%. Suppose you need to calculate like this thing is clear, like just let me do this again. Suppose you need to calculate, let's 800, you need to find 50% of this, 25% of this, 12.5% of this, so 50% will be half of this, 25% will be 1/4 of this, 12.5 will be 1/8 of this. I hope you are getting this point. Similar way you can see these number, these are fraction to percentage table, so 1 upon 1 is 100%, 1 upon 2 is 50%, 1 upon 2 is 50%, है ना, 1 out of 2 is 50%. So these are the numbers are written till 130. So try to memorize them. I hope everyone knows this simple, this also. Few might be difficult, like 1/7, 1/7 14.2857 एग्जैक्ट होता है, और ये आगे रिपीट करता रहता है, मतलब फिर से 142857 इस साइकिल में रिपीट करता रहेगा, बट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर अप टू दिस। 1/9, 1/11, try to remember all these up to 130. Now I am telling one more number, that is 1/37 is 2.7%, whereas here if you see 1/27 is 3.7, you can see here, I am just telling, like
दिस इज जस्ट अ वे टू मेमोराइज, ठीक है, जस्ट याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, नथिंग एल्स। आई एम जस्ट टेलिंग अ वे टू मेमोराइज दिस थिंग, ओके। और अगर और भी अगर मैं तुम्हें तरीके बताऊँ याद करने का, तो ये देखो जरा, 1/24 सबको पता है 4% होगा, ये आसानी से पता कर लो 4% है इसका। अब क्या करो, जस्ट अगेन ये याद करने का तरीका है नथिंग एल्स, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, ठीक है। अगेन ही याद करने के तरीके हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15, 3.85। जस्ट मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, नथिंग एल्स। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 + 1 26, 24 सब्ट्रैक्ट करना है बस, जैसे तुम्हें समझ में आए। इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू रिमेंबर 1, यहाँ तक याद करना है तुम्हें, और 1/37 का 2.7 होता है। ऐसे मैं तुम्हें एक एक एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट यू गैस टू रिमेंबर ऑन योर ओन, ठीक है। 1/7 का देखो ऐसा होगा। अब देखो 1/14 का कैसे, 1/14 का होगा 7.14, 1/7 का क्या है 14.28 है ना, 14 का देखो ट्वाइस है, 14 का ट्वाइस है। और रिमेंबर रखो 1/7 होता है, रिमेंबर दिस थिंग 14 2.57, ठीक है। 1/7 7 to 14, 14 to 28, 14 है तो 7 से स्टार्ट करो और उसको ट्वाइस कर दो, ठीक। तो दिस इज द वे, लाइक नाउ अप टू यू, तुम्हें ये टेबल पूरा याद करना है। अब देखो इस टेबल से कुछ चीज़ें, सपोज अभी तो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, सिंपल चीज़ें बताई, 10% निकालना, 5% निकालना, 20%, 30%, ऐसे सिंपल सी चीज़ें हमने सीखी। नाउ सपोज यू हैव सम लाइक ट्रिकी क्वेश्चन, लेट्स से you need to find 33.33% of let's say 90, है ना। suppose you need to find 33.33% of 90, so how you will find it, like it become difficult, like you do like this into 100, then अगर वहां पर ऑप्शन दिए होंगे you will not match, your option match नहीं करेगा, because you have to remember this thing, 33.33 is 1/3. That's why this table is important. So whenever you see 33.33%, it means you need to just 1/3. Now 1/3 of 90 is 30. Clear? है ना? Suppose you need to find, suppose let's say you need to find like 33/1/3% of 99. तो अभी तक जो हमने मेथड देखे उनसे फाइंड करना डिफिकल्ट है ना, बट विद द हेल्प ऑफ दिस, दिस इज इक्वलेंट टू दिस, सो 1/3 of 99 विल बी 33। क्लियर? सिंपल सी चीज है। अब सपोज लेट्स टेक वन मोर थिंग, लेट्स टेक फाइंड 9 पॉइंट, या फिर फाइंड 231, फाइंड दिस थिंग, फाइंड ऑफ 231, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ यूल फाइंड, अभी तक जो मेथड सीखे उनसे कैसे करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर, बट इफ यू सी द टेबल, इफ यू सी द टेबल, दिस इज 1/11, so 1/11, so if you do 1/11 of 231, so that is 21. So that's why this table is important. Make sure you remember this thing. ये चीजें भी देख लेना थोड़ा, ठीक है। You must be aware of that this is 4.6, this is 1/21. So suppose you need to find, like question is find 7.69 of 464. Suppose this is the question. Now let's see, this is the table, 7.69 is this one, so 1/13 of, it means you need to find 1/13 of 464. This is 13 3s are 13 3s are 39, and then is it multiple, मल्टीपल है, मल्टीपल है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट इज नॉट मल्टीपल, कैलकुलेशन तुम देख लेना ना, 13 3s are 39, मैंने गलत नंबर सोचा, दैट इज नॉट मल्टीपल, आई थिंक 13 3s are 39, एंड देन वी हैव 7 74, आई डोंट थिंक दैट इज दैट, ठीक है, नॉट एन इशू, बट दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट, है ना। यू कैन नॉट डू लाइक दिस, इफ यू विल डू यू विल गेट द अप्रॉक्स आंसर, अगर तुम ऐसे करोगे यू विल गेट द अप्रॉक्स आंसर, योर आंसर विल नॉट मैच,
that will create the problem. So how you will find? You will do 7.69 1 by 13 into 464. This will be your आंसर. अब ये कैलकुलेशन जो भी आ जाएगा पॉइंट वगैरह में वही तुम्हारा आंसर होगा. इसको थोड़ा आसान करते हैं, इसको करते हैं. तो ये लाइक 91 से अगर सपोज यहाँ पर 91 होता है ना, दिस वाज 91. सो 1/31 इंटू 91, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 7 आंसर हो जाता. नाउ सपोज फाइंड 5.26% ऑफ 5.26 ना 627. तो अब देखो 5.26 क्या है? 5.26 इज दिस वन 1/19, 1/19. So 1/19 of 627. So that's why this table is important. Okay, I hope now you get the clarity. Do practice on your own. अपने आप कुछ भी नंबर लिख के खुद से ये चीजें प्रैक्टिस करो so that you get familiar with this thing. ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, these are called the milestones. ये थोड़े हैं. माइलस्टोन्स का मतलब ऐसे देखो, एक लाइन है ये तुम्हारी. जनरली हम ऐसे बात करते हैं ना कि लाइक जब सपोज तुम कहीं जा रहे हो देन यू से कि लाइक आधी दूरी अभी बची है, अभी लाइक 1/4 डिस्टेंस बची है ना, थोड़ी दूर बचा, ऐसे रिफर करते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द माइलस्टोन्स. तो जनरली माइलस्टोन्स लाइक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना और यहाँ तक 1. तो दिस इज लाइक 1 से स्टार्ट करोगे, इसमें लाइक इतना दिया है ना, देखो 0 से स्टार्ट करोगे तो ये हाफ, ठीक है, बेसिकली 8 पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, तो 8/8 ऐसे कर सकते हो और इसे कर सकते हैं हम 8, तो ये होगा 4. ठीक है, तो यहाँ पर से स्टार्ट करो 8 एंड देन 1/8 एंड 2/8 एंड 3/8 एंड 5/8, 6/8. अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है 7/8. ये नंबर्स तुम्हें याद रखने हैं. These numbers you need to remember. These numbers you need to remember. Fine. So 1/8 is 12.5. This is like जैसे ये पूरा डिस्टेंस था तो 0 से स्टार्ट करोगे और 1 तक जाओगे तो ये 1/8 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, 1/8 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस दैट इज 12.5%. Then this is 2/8 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, so that is totally 1/4 of the distance, that is 25%. Then 3/8 is 37.5. देखो ये तो पता, 1/8 देखो वहां से याद कर लोगे है ना, और 1/4 भी तुम्हें पता होता. 3/8 इज नया नंबर है, ये नया नंबर है तुम्हारे लिए, ये नया नंबर है. तो रिमेंबर दिस इज 37.5%. ठीक है, और बाकी 50 भी उसमें होगा 1/2, ये नया नंबर है तुम्हारे लिए. दिस इज द, तो रिमेंबर 5/8 इज 62.5% एंड 6/8 लाइक दिस इज 3/4. आई होप यू नो 75% होता है 3/4. 7/8, ये 4 नए नंबर हैं, बाकी सारे वही पुराने नंबर हैं. तो ये 4 नंबर तुम्हें याद रखने हैं. 3/8 मैं फिर से लिख देता हूँ इन्हें, लेट मी राइट इट अगेन. तो 3/8 37.5 होता है, 5/8 62.5 होता है एंड 3/4, ये 3/4 ये तो है ना, 3/4 75% होता है और 7/8 87.5 होता है. रिमेंबर दीज नंबर. डायरेक्टली हो सकता है 87.5% किसी चीज़ का फाइंड करो ना, सो यू नीड टू डू 7/8, तब चीज़ें आसान हो जाती है. सपोज यू नीड टू फाइंड 87.25% ऑफ 64 है ना, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया फाइंड 87.5% ऑफ 64. सो दिस इज 7/8 ऑफ 64, सो दैट इज 8, सो दैट इज 56. दिस वे इट इज इजियर. अगर ऐसे तुम देखो 87.5% ऑफ 64 निकालोगे देन इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू. देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, सपोज फाइंड 87.5% of 64. So how you'll do 87 point upon 100 into 64? This is a difficult calculation or not? But if you use this thing that is 7/8 into 64, then this is very simple thing to do, 56. Okay, so that's why these milestones are important. So how many things you need to remember? You need to remember this complete table, this one, एंड विद दीज फॉर्म्स ऑल्सो. ये वाली फॉर्म भी तुम्हें पता होनी चाहिए, ये वाली फॉर्म भी तुम्हें पता होनी चाहिए. एंड वन एक्स्ट्रा थिंग, 1/37 2.7 होता है सिंपल, और 1/27 का 3.7% होता है. ठीक है, वो यहाँ से
और फिर ये माइलस्टोन टेबल में कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा 3/8 एंड 5/8, 6/8 एंड 7/8, इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी, इतने कन्वर्जन्स तुम्हें याद रखने हैं. नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस एंड लेट्स से दिस वन. Rohit scored 50% of maximum marks in an examination. It failed by 12 marks. Rohit scored 50% of maximum marks, जो maximum ऑफ एग्जाम का है उसने, and it failed by like 50% मार्क्स हैं, और अगर 12 और मार्क्स होते तो पास हो जाता है ना. Had he scored 10% more than what he scored, he would have just got passing marks. तो जो अभी उसके मार्क्स हैं उससे अगर 10% और स्कोर किया होता, अगर उसके भी 50% मार्क्स हैं, तो अगर 50% तो इसका 10% 5 होगा ना, अगर उसने 55% मार्क्स स्कोर किए होते, यू वुड हैव जस्ट गॉट पासिंग मार्क्स. सो 55% इज द पासिंग मार्क्स, 55% इज द पासिंग मार्क्स नाउ. एंड और ये तुम्हारा 5 कितना 5% हो गया तुम्हारा 12 के बराबर 5%. अब देखो ये करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्दी से शॉर्टकट एक मेथड बता दूँ, अभी समझना तुम्हें धीरे धीरे से, ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग ऑफ शॉर्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो दैट विल बी 240 आंसर. 5% अगर इतना है तो 20% से मल्टीप्लाई कर दो 100%, वही हमें निकालना है 240. अगेन मैं फिर से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से कर रहा हूँ. अच्छा चलो बेसिक से बिल्कुल मैं ऐसे करता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फास्ट कैसे कर सकते हैं. रोहित स्कोर्ड 50% ऑफ अ मैक्सिमम मार्क. लेट्स से मैक्सिमम 100x है, 100x का पेपर है, रोहित के मार्क्स आए 50x, और अगर उसके इतने मार्क्स होते तो वो पास हो जाता, ठीक है. हैड ही स्कोर्ड, तो देखो रोहित के मार्क्स इतने आए हैं और पासिंग मार्क्स ये है, दिस इज द पासिंग मार्क्स. हैड ही स्कोर्ड 10% मोर, तो इसका 10% मोर कैसे करोगे, 50x है, 50 का 10% 5x हुआ, तो अगर उसने इतने मार्क्स स्कोर किए होते दैट इज 55x, 55x दैट इज द पासिंग. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन, 50x इक्वल टू 50x प्लस 12, ये पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे. 5x इक्वल टू 12 आ गया, तो x इक्वल टू 12/5 आ गया, और ये यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स निकल आएंगे 100 इंटू 12/5, तो 5 दैट इज 20, 240 आ गया. अब जो मैंने पहले सॉल्व किया था वो तुम फिर से रिपीट करके देखना कैसे सॉल्व किया था. ओके. In a country, 55.5% of the population are male and rest are female. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और कैट में अगर तुम देखोगे प्रीवियस ईयर मैंने कराया है, ये चीज बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि लाइक टोटल पॉपुलेशन मेल फीमेल देन लिटरेट लिटरेट, ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, ठीक है. तो ये मेक श्योर कि तुम्हें ये चीज समझ में आए. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर तुम पीछे टेबल में देखोगे तो 1/9 जो होता है तुम्हारा डेट इज 11.11%, ठीक है. तो 55 क्या हो जाएगा, 5/9 इज 55.55%. सिंपल सिंपल. तो अब तुम क्या करोगे इसमें, तुम टोटल पॉपुलेशन देखो 9x ले लेते हैं, 90x ले लेते हैं, 90x ले लेते हैं. अब इसका मेल कितना 5/9, अब इसका 5/9 निकालना आसान है ना, डेट इज 50x तुम्हारा मेल हो गए, 40x तुम्हारे फीमेल हो गए. ये बात समझ में आई. सो डैट्स वाई वो जो फ्रैक्शन रेशियो कन्वर्जन जो टेबल अभी तक जो मैं तुम्हें बताई है, डैट्स वाई दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जिसे ये चीज नहीं पता है, ठीक है. जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, फिर भी दिस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे अगर ये चीज नहीं समझोगे, ठीक है. अब क्या करना है, अब द मेल 60% आर लिटरेट. अब मेल में 60% लिटरेट है, तो 50x का 60%, 10% 5 हुआ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो डेट इज 30x. 30x तुम्हारे लिटरेट हैं. एंड ऑफ द फीमेल्स 40% आर लिटरेट. 40x का 10% 4x, एंड 40% निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x लिटरेट है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट आर लिटरेट. तो टोटल पॉपुलेशन लिटरेट कितनी है 46, 46x, टोटल पॉपुलेशन है 90, तो कितने परसेंट लिटरेट हो गए, दिस इज योर आंसर 90x ना. तो 46/90
into 100, this is your answer. अब ये कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो दिस शुड बी अराउंड 460. वो लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम ना, 55 आ गया, 45 एंड 1 तो ये ऐसे चलता जाएगा. 51.11%. दिस इज द पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट. ठीक है, दिस वे यू विल डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हें वो, अगर देखो ये ना पता होता हमें कि 90x लेना, देन प्रॉब्लम हो जाती है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. मोहन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% ऑन फूड, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड सेव द रेस्ट. तो लेट्स से मोहन की टोटल इनकम 100x है, 40% उसकी रेंट में खर्च हो जाते हैं, 20% फूड पे, 10% एंटरटेनमेंट में, बचा कितना? 30 बचा, 30 बचा ना, 30x. एक्सपेंडिचर कितना है? 70x. फाइंड हिज सेविंग एज अ परसेंटेज, सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंडिचर सेविंग into 100. So this is your answer. That is 3/7. So 3/7 होता है तुम्हारा 42 पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, वो देख लेना कैलकुलेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट. और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेसिक सिंपल से क्वेश्चन परसेंटेज के. मेक श्योर किसी भी बुक से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. इफ यू गेट एनी डाउट यू कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम चैनल. ग्रुप में ये चैनल है, और ग्रुप जो है वो ऐसे है, जस्ट ये नाम सर्च कर लो, कैटरीज ग्रुप. डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज. दिस वॉज वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड ऑल द थिंग. सो मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप ज्वाइन कर लो डिस्कशन के लिए. दैट्स इट, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.